Hello friends, my name is Dr. Anita Sharma, lecturer in SSN Subodh PG Mahila Mahavidyalaya, Jaipur. My area of specialization is HR. In this session, we will discuss about organizational behavior, which is an important paper for the student of Commerce and Management. Let's begin. In this session, we will talking about what is OB, elements of OB and importance of OB. Before define organizational behavior, we had to understand that there are two words in organizational behavior. One is organization and the other is behavior. What is organization? Organization is a group of people who work independently towards some purpose. So making an organization, two or more persons are necessary because they form a group. They are collected to work for a common goal with the help of their collective efforts. So group of people, common goal and collective efforts are necessary for the formation of a group. Next is behavior. Behavior, what is behavior? The way of act in a given situation is behavior. It is verbal or physical response shown by a person as a consequence of the impact of his or her surroundings. Behavior, आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ और जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी डिफरेंट सराउंडिंग से, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग ही फिज़िकल और वर्बल रिस्पॉन्स करते हैं और यही फिज़िकल और वर्बल रिस्पॉन्स जो है वो उनका बिहेवियर होता है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीन समझ में आ गया है तो हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। रॉबिन्स ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। According to Robbins, organizational behavior is a field of study that investigates the impact that individuals, groups, and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness. So, organizational behavior is a systematic study about the structure of the organization as well as functions of the organization and the most important, the performance of the people who are at work in the organization. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम सबसे पहली बात इस बात पर फोकस करते हैं, हाउ डू पीपल बिहेव इन अ गिवन सेटअप। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन इंडिविजुअली क्या बिहेव करेगा, ग्रुप में क्या बिहेव करेगा, उसको स्टडी करते हैं सो दैट हम उसको प्रॉपरली डायरेक्शन दे सकें और हम ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकें। जब हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग समझ में आ गया है, हम समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, तो हमें इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके की एलिमेंट्स को समझना ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फर्स्ट की एलिमेंट पीपल है। पीपल का मतलब है सारे पीपल हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा इम्पोर्टेंट की एलिमेंट कौन से पीपल है? हु आर एट वर्क। People are intellectual capital, they are social capital. They make the organization, they break the organization. इसीलिए ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों पर ध्यान दिया जाए, उन लोगों को समझने की कोशिश की जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, because they have their own skills, knowledge and their capabilities. So we always consider people. The next element is structure. The philosophy of running an organization is structure. Structure define the formal relationships of people in organization. और स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है। स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेव पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है।
इसीलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट की एलिमेंट है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं और काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। तो जब आते हैं लोग, एक दूसरे से मिलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वे अपना कल्चर डेवलप करते हैं। बिकॉज व्हेन द पीपल कम्स टुगेदर and meet together, they develop their own culture. So it's necessary for the manager of an organization that they try to understand their culture. The next element is technology. How the people respond to the technology, it is very important. आपको पता है कि चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो उस टेक्नोलॉजी को रेसिस्ट करें, तो आपको उस रेसिस्टेंस को दूर करना ज़रूरी है। सो इट्स नेसेसरी दैट हाउ वी ओवरकम ऑन रेजिस्टेंस। नाउ वी कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ओबी। हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ओबी क्या है, इसके की एलिमेंट्स क्या है। तो हम नेक्स्ट बात हमारी को ये समझनी है कि इम्पोर्टेंस क्या है ओबी की, कि क्यों हम ओबी की स्टडी कर रहे हैं, क्यों ओबी को हम इतना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग है, ऑर्गेनाइजेशन में ओबी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इम्प्रूव होती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रही होती हैं वो न केवल इंडिविजुअल गोल के लिए काम करेंगे बल्कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए भी काम करेंगे, और इससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और जिसका बेनिफिट मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज स्किल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनकी स्किल, उनकी नॉलेज में कहाँ डेफिशिएंसी है, ये पता लगाने में ओबी हेल्प करता है। और उसके थ्रू जब हमें टाइम पे पता लग जाए कि डेफिशिएंसी है, तो हम उनकी नॉलेज को, उनकी स्किल को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, हम उनकी एबिलिटी को एनहेंस करेंगे और इसके थ्रू उनकी स्किल डेवलप होगी। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीन है विद इन टाइम काम को कैसे पूरा करना है। तो ओबी की स्टडी करने से एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ कोशिश करेंगे कि वो टाइम पर काम पूरा करें, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए काम करें, और जब किसी टारगेट को लेकर काम करेंगे तो विद इन टाइम वो काम पूरा करने की कोशिश करेंगे, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई गलत हो रहा है तो अगर उसको समय रहते आप पता लगा लो तो उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने से पहले ही आपको पता लग जाए तो आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन पहले से कर सकते हैं और आप उसको होने से रोक सकते हैं। इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी और एथिकल एनवायरनमेंट डेवलप होता है। द नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन में मनी, मैन एंड मशीन, दीज 3 रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, और इनका यूटिलाइजेशन अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, और ओबी की स्टडी करने से इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बताया था पहले कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक पर्सन का इंडिविजुअल और ग्रुप में बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो ये हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम इससे ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझ पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे डायरेक्शन और मोटिवेशन प्रोवाइड कर पाते हैं। द लास्ट इम्पोर्टेंस इज की टू एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ये सारे पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि अगर हम ओबी की स्टडी करेंगे, एक मैनेजर ओबी के कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगा, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ की स्किल डेवलप होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप होगा, ह्यूमन बिहेवियर को प्रॉपर डायरेक्शन मिल पाएगी, और इन सब का रिजल्ट होगा कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट introduction of OB. I hope you like it. Thank you.